اس ادارے میں یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے. ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز آپ کو دکھائیں گے. جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے. بندے کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے بچوں کو کوئی چیزیں تقسیم کرے, تاکہ ہمارے بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو ہم یتیم ہیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ. ناظرین, آج میں ادارے میں ایک موجود ہوں اور اس ادارے کا نام ہے ریمپ. اس ادارے میں یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے اور پھر ان کی بھرپور پرورش کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام وہ بچے ہیں جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, اور تمام وہ بچے ہیں جو ضرورت مند ہیں, جن کے والدین یا جن کی ماں یا جن کا باپ ان کو پال نہیں سکتا. جہاں پر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو اولاد کی بات جہاں آتی ہے وہاں اولاد برابر ہوتی ہے. اولاد کا دکھ ایسا ہوتا ہے جو خود کو بھی لگتا ہے, اور جو بچوں والا ہوتا ہے وہ جب سنتا ہے تو اس کو بھی اس کا دکھ محسوس ہوتا ہے. ان کا لائف سٹائل کیا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز آپ کو دکھائیں گے. جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے, اور خود ان بچوں سے ہم بات کریں گے. آئیے میرے ساتھ. ناظرین, یہ بچے اپنے پلے گراؤنڈ میں موجود ہیں, اور سب سے اچھی چیز جو مجھے دیکھ کر لگی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ لائن وائز یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم سے بچے ہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے جب ہم ڈریسز کی بات کرتے ہیں تو میں تو امپریس ہو گئی ہوں کہ کتنے مزے کے کلرفل ڈریسز انہوں نے پہن رکھی ہیں. اور نعت کے حوالے سے, تلاوت کے حوالے سے بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ان سے سنیں گے, نعت بھی تلاوت بھی, کہ دین کے متعلق ان کی تربیت کیسی کی جا رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ. امیر حمزہ, آپ کیا کرتے ہو, کون سی کلاس میں ہو؟ حفظ کلاس میں. حفظ کر رہے ہیں آپ؟ کون سے سپارے پہ؟ 6 6ویں سپارے پہ ہیں, ماشاء اللہ. پھر ہمیں تلاوت کر کے سنائیں گے؟ جی. سٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. جزاک اللہ. اچھا مدثر, مجھے بتائیے کہ آپ کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے. چلیں شروع کیجئے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت نعت بچے نے سنائی ہے. یہ تمام بچے کس طرح سے اس ادارے میں رہتے ہیں, ان کے کمرے کس طرح کے ہیں, ان کے واش رومز کس طرح کے ہیں, یہ سحری کیسے کرتے ہیں, یہ افطاری کیسے کرتے ہیں, یہ سب بھی آپ کو دکھائیں گے. ناظرین, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے پیارے سے بچے ہیں اور ان چاروں بچوں نے مل کر نعت پریپیئر کی ہے سنانے کے لیے. وہ ہم ان سے سنتے ہیں. پہلے ان کے نام جانتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ حبیب اللہ. اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ احمد. آپ کا؟ لطیف. اور آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. ماشاءاللہ, اتنے پیارے پیارے بڑے بڑے نام ہیں. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ شروع کریں. رمضان کا مہینہ مبارک, قرآن کا مہینہ مبارک. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ پیارے پیارے خوبصورت سے معصوم سے چھوٹے چھوٹے سے بچے جنہوں نے آرمی کا یونیفارم پہن رکھا ہے, فوجی لگ رہے ہیں یہ, اور یقیناً یہ جوان ہیں. اس معاشرے کا مستقبل ان کے کندھوں پر ہے. نعرہ تکبیر کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہ ہم ان سے کرواتے ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام شاریز ملک ہے. شاریز. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 14 ایئر. 14 ایئرز ہے. روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا مجھے بتاؤ, بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کمانڈو آفیسر. کمانڈو آفیسر بننا ہے. بڑا مشکل ہے بننا, پتہ ہے؟ پھر بھی بننا ہے. اچھا لگتا ہے کمانڈو؟ جی کمانڈو اچھا لگتا ہے. چلیں جی, اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کیجئے.
नाज़रीन, इन बच्चों के जो बेडरूम्स हैं, अब हम उधर चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। आइए जी। ये नाज़रीन इनका बेडरूम है, जहाँ पर ये बच्चे रात को सोते हैं, रहते हैं। बेड्स इनके अरेंज किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे तरीके से वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं आप लोगों के। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। तो बच्चों के साथ हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चे भी हमारे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप बताइए, इन बच्चों के साथ यकीनन बच्चे साथ रहते हैं, ईद, शबरात, रोज़े, तमाम जो त्यौहार हैं हमारे वो साथ गुजरते हैं, तो बच्चों के साथ एक बड़ा मोहब्बत का बड़ा प्यारा रिश्ता डेवलप हो जाता है। असल में मियाँ अकबर रशीद साहब का ये सारा अरेंजमेंट है और ये बहुत ही डिटर्मिनेंट थे कि मैंने ये ज़रूर करना है। और बच्चे जो हैं इनको अब्बू कहते हैं और ये भी बेटा कह के पुकारते हैं। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बच्चों की तरह है जैसे अपनी औलाद होती है और उसी तरह उनका ख्याल रखा जाता है और वैसे ही उनसे प्यार किया जाता है। अच्छा, इनकी बड़ी प्यारी सी वार्डरोब्स भी हैं मियाँ अकबर साहब, ज़रा हम वो भी नाजरीन को दिखाएं अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़ आइए आइए मैं दिखाता हूँ जी। तो नाजरीन ये है, मुख्तलिफ कलर्स की एलुमिनियम की वार्डरोब्स हैं। ये लकड़ी की भी बन सकती थी, ये मगर डबल इसकी कीमत है, मगर हमने ये इसलिए बनवाई है कि ये देर पा हों और ये इनकी मेंटेनेंस ना हो। ये देखें, ये इनकी जो मदर्स हैं, जो एक कमरे पे 7 बच्चे हैं और 8वां उसकी मदर का बेड है। और ये उनकी मदर्स ने किस तरह अरेंज करके उनके कपड़े रखे हुए हैं और बाकी सारे प्रेस करके। जी इसी तरह होता है जी हमारे वहाँ। सब कपड़े प्रेस करके रखे जाते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ हर चीज़ का अलग स्टाफ है। कपड़े धोने वाली अलग एक खातून है जो कपड़े धोती है। एक रूम में एक मदर है? एक रूम में एक मदर है। एक रूम में कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं जी। हमारे पास इस वक्त हमारे पास 5 रूम्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं। 31 बच्चे हैं इस वक्त हमारे पास पूरे जी। माशाल्लाह। चले आए जी, नेक्स्ट रूम दिखाते हैं आपको। अपने बच्चे हैं जी। ये है नाजरीन इनका रूम नंबर 3 और इसका जो कलर है वो मेरे ख्याल से येलो थीम रखा गया है, ऐसे ही है? येलो थीम, बिल्कुल येलो थीम है जी। देखें सब कुछ येलो है इसकी। और अच्छा, तमाम की जो डिज़ाइनिंग है, जो फर्नीचर की अरेंजमेंट है, सेम है जी? सेम है जी तकरीबन। इस तरफ की सेम है, उस तरफ की अलग है। ये आइडिया कैसे आया आपको? बस हम ये काम करते हैं जी, फर्नीचर का काम करते हैं। और ऑर्फन चिल्ड्रन? जी मैं खुद ऑर्फन हूँ जी। मेरे वाले साहब, मैं 3 साल का था जब उनकी डेथ हो गई है, तो मैं खुद ऑर्फन हूँ और मैंने वो सारी तकलीफ़ें देखी हैं जो एक ऑर्फन बच्चे को होती हैं। तो मुझे एहसास है पूरा और इंशाल्लाह मैं इन बच्चों को कभी नहीं होने दूँगा कोई ऐसी तकलीफ़। ज़बरदस्त, क्या जज्बा है आपका। अगर ये जज्बा हम तमाम लोगों का हो तो फिर क्या ही बात है। आइए इनके डाइनिंग रूम भी और इनका जो टीवी लाउंज है वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि मियाँ अकबर साहब ने नाज़रीन हमें बताया कि हर रूम में एक मदर हैं और वो इनका बिल्कुल उस तरह से ख़याल रखती हैं जैसे कि हमारी माएँ हमारा घरों में ख़याल रखती हैं। उन मदर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माफिया अमीन। माफिया अमीन। माफिया, आप इन बच्चों की मदर हैं जी। इस रूम की। कैसे वक्त गुजरता है, थोड़ा सा बताएं। इनकी बातें जो आपके साथ होती हैं, अपने मसले मसाइल सुनाते हैं जैसे बच्चे अपनी माओं को सुनाते हैं? जी बिल्कुल, अपनी हर प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी हर बात हमें बताते हैं। फिर हम लोग इनके सारे मसले देखती हैं, इनको देखती हैं, इनके सारे 5 वक्त इन्हें नमाज़ पढ़ाती हैं, खाना वगैरह इन्हें देती हैं। अब माशाल्लाह से रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अब इन्हें हम अफ्तारी करवाएंगे और बाकी इनके कपड़े वगैरह प्रेस करना, इनकी अलमारी सारी सेट करना, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। सहरी के टाइम जब आप इनको उठाती हैं तो तंग करते हैं या उठ जाते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक आवाज़ पे सब उठ जाते हैं। अरे वेरी गुड। कैसे आवाज़ देती हैं, ज़रा दे के दिखाएं। हम कहते हैं आतिफ बेटा उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया, उसी वक्त उठ जाते हैं। अच्छा, तंग नहीं करते? नहीं, शुक्र अल्लाह। शरारतें तो करते होंगे? वो तो थोड़ी बहुत करते हैं, बच्चे हैं ना। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमें अक्सर हम लोग हंसरी होती हैं इनकी शरारतें देख के। वो जैसे ज़ाहिर बात है माएँ करती हैं, इनके साथ लाड वगैरह भी करते हैं। कभी गुस्सा भी करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, काम चलाने के लिए। हाँ जी, वो तो करना पड़ता है। अब इनकी अफ्तारी का टाइम भी नाज़रीन हो रहा है, तो हम आपको इनकी अफ्तारी का तरीक़ा कार जो है वो भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जी। जैसे कि एक रूम में एक मदर अरेंज की गई है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? जी ऐसे है जैसे हमारे घरों में मदर्स होती हैं जो हमें संभालती हैं, हमें देखती हैं। इस तरह हमारा ये ख्याल था कि हम एक रूम में एक मदर रखें। हमारे कागज़ों में वो मदर है मगर बच्चे उनको आप ही कहते हैं।
बच्चे उनको मदर नहीं कहते, ये अभी नौजवान लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी होनी है। तो ये बहुत अच्छी लड़कियां हैं, यहाँ बच्चों का बड़ा ख्याल करती हैं और ये 24 घंटे यहाँ रहती हैं और बड़ी डिवोटेड हैं ये जितनी भी हैं। मेरी एक जानने वाली है रूही खान, वो बड़े फलाह के काम करती है, मेरी तरह उसके सफ़ेद बाल हैं। तो उसने मुझे ये कहा था कि मैंने पहले मेरा ख्याल था कि मैं 40-45 साल की खातून को अपने यहाँ मदर बनाऊँगा। मुझे उसने कहा कि आप 40-45 साल की खातून को क्यों मदर बनाएंगे, उसको क्या आता होगा। ये सीखी सिखाई लड़कियाँ हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, बच्चे और एक्टिव हैं। ये एक्टिव हैं। बच्चे लड़कियों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक खातून घर से आएगी, वो सीखी सिखाई होगी, वो गालियाँ अगर निकालती होगी तो यहाँ भी आके गालियाँ निकालेगी, बच्चों को अगर डांटती होगी तो डांटेगी, उसका मिजाज एक सेट हुआ है। तो ये तो फ्लेक्सिबल है, जिस तरह आप इनको चलाएं। तो ये भी यहीं पे रहती हैं? ये यहीं रहती हैं, 24 घंटे ये यहीं रहती हैं। हाँ जी, इनको एक माह में हम 2 छुट्टियां देते हैं। उसके अलावा वैसे जब बच्चे छुट्टियों पे जाते हैं फिर भी इनको छुट्टियां होती हैं जी। ईद पे 10 छुट्टियां इनकी हैं, फिर अगली ईद पे 10 छुट्टियां हैं, गर्मियों में इनकी छुट्टियां हैं, सर्दियों में इनकी जी। नाज़रीन, ये इन बच्चों का किचन है, यानी रैंप का जो एक इदारा है उसका ये किचन है। और किचन की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इंतहाई नीट एंड क्लीन किचन है। बिल्कुल ये एहसास ही नहीं हो रहा कि हम किचन में खड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बड़े मज़े की, बड़ी कलरफुल सी प्यारी सी ये फ्रूट चाट है जनाब जो सर्व कर रहे हैं ये लोग। इसके साथ साथ रोल हैं, समोसे हैं, इसके साथ साथ डेट्स हैं, खजूरें हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन अंदाज में इसको सर्व किया जा रहा है। बच्चों के लिए प्लेट्स बनाई जा रही हैं। हम प्लेट्स की जब बात करते हैं तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि मेड माय प्लेट। वो प्लेट जो है असल आपको कॉन्फिडेंस वो देती है कि ये मेरी प्लेट है। तो इसी तरह इन बच्चों की प्लेट्स भी सजाई जा रही हैं और यहाँ पर ये सारे का सारा खाना जो है वो बन रहा है। और यकीनन इंतहाई नीट एंड क्लीन अंदाज में आप देखें कि ज़रा भी यहाँ पर चिकनाई, कोई स्मेल, कोई गंदगी कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। तो नाज़रीन, इफ्तारी का टाइम हो गया है। अब मैं चलती हूँ, इन बच्चों के साथ इफ्तारी करूँगी, आप भी आइए। नाज़रीन, इफ्तारी का वक्त हो गया है। बच्चे रोज़ा खोल रहे हैं, हम भी रोज़ा खोल लेते हैं। इंतहाई डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे रोज़ा खोला जा रहा है। अब हम इफ्तारी करते हैं। नाज़रीन, इफ्तारी हो चुकी है, ये बच्चे इफ्तारी कर रहे हैं। मैंने भी आज का दिन इनके साथ गुजारा और इफ्तारी इनके साथ की है। दिल को बहुत ही सुकून महसूस होता है इन बच्चों के साथ बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि इस इदारे को कायम करने वाले शख्स का जज्बा, जिसने इसको कायम किया और इन बच्चों को उस तरह से रखा जिस तरह से हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने घर में रखते हैं। डिसिप्लिन आपके सामने, खाने पीने का तरीक़ाकार, रहने का, बैठने का। इन बच्चों को मेरी और आपकी ज़रूरत है। इन बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, जो हमें देना चाहिए। कोई भी बच्चा अल्लाह ताला के पास से जब आता है तो ये गारंटी लेकर नहीं आता कि इसका बाप इसके सर पर रहेगा या नहीं, इसकी माँ इसके सर पर रहेगी या नहीं। तो ये ऐसे काम हैं जो हमें अपनी आखिरत संवारने के लिए करने चाहिए। मियाँ अकबर रशीद जो कि रैंप ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ अकबर साहब, सारे के सारे ट्रस्ट को, रैंप को, इदारे को हमने विज़िट किया है। जो सवाल मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा है वो ये है कि आप मैनेज कैसे करते हैं? जी देखें, हम अपने कारोबार मैनेज करते हैं, हम अपने घर मैनेज करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ जो हम वो मैनेज करते हैं। तो इसको तो मैनेज करना मेरा पैशन है। तो ये अल्लाह ताला का मुझ पे खुसूसी करम है कि आज उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ। हुज़ूर पाक ने ये फरमाया है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला बंदा रोज़ क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह 2 उंगलियां हैं। शहादत की उंगली के साथ उन्होंने इशारा करके बताया। तो ये भी बात हमारे सामने है। हमारा मज़हब भी ये कहता है सिर्फ़ नमाज़ पढ़नी या रोज़ा रखना या हज करना वो कोई ऐसी इतनी बड़ी इबादत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए मियाँ अकबर साहब कि आप खुद यहाँ पर डेली आते हैं, हफ्ते में आते हैं, कब कब चक्कर लगता है? जी, मैं एक हफ़्ते में 4 दिन आता हूँ जी, ज़रूर। यहाँ आके 2-3-4 घंटे रहता हूँ और एक एक बंदे को, एक एक चीज़ को खुद अपनी को देखता हूँ, सुपरवाइज़ करता हूँ। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं। एक ख्वाजा रमज़ान साहब हैं, वो ट्रस्टी हैं हमारे, और शौकत अली भट्टी साहब हैं, वो ट्रस्टी हैं हमारे। उनका बड़ा मेरे साथ तावन है और वो आज भी मौजूद हैं यहाँ। आपने देखा है, आप उनसे मिली हैं। बहुत अच्छे हैं वो। मेरे बड़े मुअद्दब मुआवन हैं।
अच्छा, मुझे एक बार सब ये बताइएगा कि चैरिटी बेस्ड सेटअप है या कि नहीं? जी, बज़ाहिर तो ट्रस्ट है ये हमारा। ट्रस्ट का मतलब ही चैरिटी है। अल्लाह ताला का हम फजल है कि हम उसके दिए में से ही अपना खर्च करते हैं। हम कभी किसी से कोई पैसा मांगते नहीं। कोई आज खुद हमें पैसे दे जाए तो वो हम शुक्रिया उसका अदा करके रख लेते हैं, मगर हम मांगते नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और ख़ास बताना चाहता हूँ। हम किसी बंदे को ये अलाउ नहीं करते कि वो यहाँ आए और हमारे बच्चों को कोई चीज़ें तकसीम करे, ताकि हमारे बच्चों को कभी ये एहसास ना हो कि हम यतीम हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक बार साहब ये है कि जब हम यतीम बच्चों की बात करते हैं तो तरह तरह की कहानियाँ जहन में घूमती हैं, जो कि यकीनन आपने ख़ुद बचपन में आपने बताया कि 3 साल के आप थे जब आप यतीम हुए, तो आप उन सख्तियों को, तंगियों को ख़ुद देख चुके हैं। बच्चे जब आपके पास आते हैं तो किस पोजीशन में होते हैं? जी, बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो ये सब स्ट्रीट बॉयज़ हैं। एक ख़ातून के 4-5 बच्चे हैं, उसका बाप मर गया, अब वो मेड है किसी के घर में, वो काम कर रही है। तो उसके बच्चे तो सारा दिन आवारा फिर रहे हैं, ना वो स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में भी अगर जब वो भेजती है तो वो उनकी मर्ज़ी है, जाएँ ना जाएँ। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो आप यकीन करेंगी कि उनके वो बिस्तर पे लेटते हैं तो जुएँ भागी फिरती हैं उनकी, जो हम उनकी जुएँ निकालते हैं, उनको ख़ारिश हुई होती है। भूख उन बेचारों के अंदर इस तरह होती है कि वो हर चीज़ को खाने को भागते हैं। अभी एक बच्चा है हमारे पास, वो 5 साल का है। वो जब आया था तो वो उर्दू या और कोई ज़बान जानता ही नहीं था। वो पंजाबी, ठेठ पंजाबी बोलता था और रोता था, मैं 2 बिस्कुट लेने हैं। वो अगर उसको 1 बिस्कुट दे दिया तो उसने कहा नहीं, मैंने 2 लेने हैं। इसी तरह वो जब खाना खाने लगे तो मैंने 2 बोटियाँ लेनी है, मैंने 3 बोटियाँ लेनी है, इस तरह वो करता था। अब उसको देखें तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया बच्चा। बच्चे ये स्ट्रीट बॉयज़ हैं, इनमें हर वो बुरी आदत थी जो आम बच्चों में होती है, जो स्ट्रीट बॉयज़ में होती है। हमें बड़ी दिक्कत हुई है, हमें उनमें से ये बातें निकालने में हमें ख़ास तौर पर ना, मुझे ये शिकवा है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना जी, वो हमारे साथ तावन तो करते हैं मगर थोड़ा करते हैं। वो दरअसल उनका भी बेचारों का कसूर नहीं है। एक तो वो गरीब है, दूसरा वो अनपढ़ हैं। जो कि अनपढ़ है इसलिए फिर वो अपने जितनी उनकी समझ है उसके मुताबिक वो बात करते हैं, वो आगे ज़िद करते हैं। अभी कोविड के दिन है, अभी हम सारे SOP जितने भी हैं उनको मद्देनज़र फिर काम करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वो आगे हमें परेशान करेंगे कि नहीं, हमने बच्चों को मिलना है। हम किसी पेरेंट्स को खाने पीने की कोई चीज़ यहाँ लाने की इजाज़त नहीं देते ताकि बच्चे पे गलत असर ना पड़े। अकबर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि बच्चों को किस उम्र तक आप लोग रखते हैं अपने पास? जी, हम 5 से 8 साल तक के बच्चे को यहाँ एडमिट करते हैं और हम इंशाल्लाह इन बच्चों की शादियाँ करेंगे और ये बच्चे इंशाल्लाह आप देखेंगी, इनमें कोई फ़ौज के अफसर होंगे, कोई वकील होंगे बड़े बड़े, कोई डॉक्टर होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कोई ताजर होंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चे, इन बच्चों ने ही इस घर को संभालना है कल को। हमने को सारी ज़िंदगी नहीं रहना, हमारा तो अब सफ़र करीब है, हमने पता नहीं कब चले जाना है। तो इन बच्चों ने ही इस घर को संभालना है। मुझे ये पूरी तवक्को है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ भी हमेशा करता हूँ, हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, इन बच्चों में, इनके दिल में इस घर की, मेरे अपने बच्चों में, मेरे अपने बच्चों के बच्चों में और इन बच्चों में इस घर की मोहब्बत पैदा कर और ये इस घर को इस काबिल कर दे कि ये हमारे बाद भी ये चलता रहे। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। पूरा नाम बताएं। शौकत अली भट्टी। शौकत साहब, आप भी ट्रस्टी हैं इस इदारे के? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये मियाँ साहब की कोशिश है जी, हम उनके सिपाही हैं, तो आपने खुद देख लिया प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या किस हालत में रह रहे हैं बच्चे और कैसे रह रहे हैं बच्चे। तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस तरह हमारे बाद भी ये ऐसे चलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप भी ट्रस्टी हैं इसी इदारे के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से? कोई जब से इदारा बना है। क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि मियाँ अकबर रशीद साहब जो है ये बहुत फलाही काम करते हैं और ये इनका बहुत बड़ा वेंचर है। इनफैक्ट मैंने इनको मना किया था कि आप ये शुरू ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन इनका इरादा इतना मजबूत था कि उन्होंने शुरू किया और करके दिखाया। तो उसमें जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि जो बच्चे वो महरूम हैं, पढ़ नहीं सकते, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उनको यहाँ लाया जाए, उनके टैलेंट को उजागर किया जाए और उनकी अच्छी परवरिश की जाए। और सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारी इनकी एजुकेशन पर है ताकि जो बड़े होकर ये इस मुआशरे का बहुत ही कारामद रुकन बने
اور اس معاشرے کی اور اس ملک کی خدمت کریں. थैंक यू सो मच. ویلکم. इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.